ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਟਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੀ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਓਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅਨਾਊਂਸਿੰਗ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਚਣ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਗਲੀ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ, ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਆਏਗਾ। ਹਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ। ਇਸ ਤੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇਅਰ ਨੋਨ ਇਨਕਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੰਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ, ਪਰ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣਾਓ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਅਸੈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ, ਉਹ ਗੈਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ, यूपी सरकार तो कुछ सीखो, जिन्हें भी देश का या स्टेट का नुकसान किया है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लो। बिल्कुल सर। संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਕ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਹਾਉ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਹਾਉ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੀ ਐਟ ਸਟੇਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।
ਬਾਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 MLA ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਤਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸਤਿਤਵ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ED ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਟੀ ਮੋਦੀ ਐਂਟੀ BJP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਆਫਰਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਦੇ ਆਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਟੂ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਰਹੀ ਗੱਲ BJP ਦੀ, BJP ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ 'ਚ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ BJP 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ 2027, BJP 2027 ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੈਸਟ ਪਿਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਚਾਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੀ ਲੀਡਰ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨੇਤਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨਾ ਹੀ ਬੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਨੇਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਖੁਲਵਾ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁਲਵਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ DC ਦੇ ਅੱਗੇ, IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ पॉलिटिक्स ना करे, उस तो बाद जनता की सेवा च लग जाए जी। कांग्रेस को इतनी क्या ज़रूरत पड़ी कि उनके जो प्रोटेस्ट है वायलेंट हो रहे हैं सर जगह जगह? देखो, डेस्परेशन की बात है। एट द एंड ऑफ द डे ED विल डू इट्स जॉब। आप बोल रहे थे गवर्नमेंट के प्रेशर में कर रही है, गवर्नमेंट के प्रेशर में भी अगर एक वैलिड केस बन रहा है तो ही इंक्वायरी हो रही है, तो ही इतने क्वेश्चन बन रहे हैं कि उनसे बार बार बुलाया जा रहा है। और आज जो लोग जिन्होंने गांधी फैमिली के साथ, उनका एक ही USP था कि वो गांधी फैमिली के क्लोज थे जी, राइट। उनके पास कोई और स्किल नहीं था, उनके पास कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, वो ना ज़मीन से जुड़े थे, और वो जस्ट बिकॉज उनके ऊपर गांधी फैमिली मेहरबान थी इसलिए वो नेशनल लेवल के लीडर बन गए। आज वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं और वो ऐसे शो कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पे एक्शन होता है देश में से जैसे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी जी। उनकी सीनियर लीडर अगर पुलिस वाले का कॉलर पकड़ती हैं और बाद में वो इतना हास्यपद बयान देती हैं कि मेरा बैलेंस खराब हो गया था, और बाद में फिर वो वापस अपनी माफ़ी भी मांग लेती हैं, राइट। तो ये एक उनका बता रहा है कि लैक ऑफ एनी कॉन्क्रीट आइडियाज़।
अब मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि हम बड़ी बार ये सवाल पूछा जाता था कि राहुल गांधी फैमिली को अगर आप बोलते हो करप्ट है और ये केसेस हैं, तो आपने 2014 में आते ही एक्शन क्यों नहीं लिया, 8 साल क्यों लगा दिए? आज मेरे को वो बात समझ में आ रही है। आज कांग्रेस अपने वीकेस्ट पॉइंट पे है, उसके बावजूद उन्होंने पूरे देश में तोड़फोड़ कर दी। इमेजिन करो जब वो सिर्फ पावर से निकले ही थे, अगर मोदी गवर्नमेंट नई नहीं बनी थी, अगर उस टाइम पे वो राहुल गांधी के जो केसेस तो पहले के हैं, अगर उन पे तब एक्शन करते तो वो देश में क्या करते? उस टाइम पे राहुल गांधी की पार्टी की गवर्नमेंट्स कितनी जगह पे थी, उनका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा था। आज वो कम हो रखा है। मैं जैसे बोला कि सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे हैं, उसके बावजूद उन्होंने लॉ ऑर्डर को अपने हाथ में लिया, पूरे देश में तोड़फोड़ करवाई। तो मेरे को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने वेट करके अच्छा किया एक तरीके से। और कांग्रेस को यह समझना होगा कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आज अगर देखो क्लियर कट केस अगर दिख रहे हैं ऑब्वियसली कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज अगर 50 लाख में और दोनों तरफ आप ही नेगोशिएट कर रहे हो, तो ये पब्लिक ट्रस्ट की जो चीजें आपको मिली हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्लियर कट केस ऑफ करप्शन है। और इसके अलावा और कितनी चीजें हैं, कितने स्कैंडल्स हैं, एक पब्लिक नॉलेज ही है इन सब चीजों की। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बाहर आनी चाहिए। जैसे हम अभी पंजाब की बात कर रहे थे कि एक्स मिनिस्टर्स के ऊपर रेड डलेगी, तो वहाँ पे भी जो लोगों ने पहले करप्शन की है, देश को जो लूटा है, उनके लिए कोई सिंपैथी होनी नहीं चाहिए जी। आज राहुल गांधी बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और उनको कवर फायर हमारे इंटेलेक्चुअल्स, लिबरल्स सो कॉल्ड दे रहे हैं, क्योंकि वो उसको आज डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, ये बोल रहे हैं कि भाई हिंदुत्ववाद चल। दैट इज नॉट द केस। इट इज अ क्लियर कट केस कि एक करप्शन हुई है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ईडी, इतने बड़े नेता को ईडी भी को प्रॉपर प्रोटोकॉल से चलना ही पड़ेगा जी। पर अगर इतना स्ट्रॉन्ग केस है तो उस पर एक्शन तो होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं तो कई बार ये हंसी हंसी में बोलता था कि राहुल गांधी की सबसे ज्यादा फिक्र तो बीजेपी को होनी चाहिए जी। वो उन्हीं को अपना मेन ओपोजिशन लीडर बना के रखना चाहेंगे। अगर ये केस होता है और राहुल गांधी की एज एन ओपोजिशन लीडर जो उनकी छवि है बिल्कुल धूमिल हो गई है, मैं सिर्फ करप्शन केस की नहीं बात कर रहा, इन टर्म्स ऑफ हिज कैपेबिलिटी ऑल्सो, जो ऑल्टरनेट ओपोजिशन लीडर बन के आएंगे वो राहुल गांधी से बेटर ही होंगे जी। बीजेपी चाहेगी कि ऑफकोर्स हर पार्टी पावर में रहना चाहती है, राइट। तो अगर कल को केजरीवाल या राव जैसे लीडर जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, वो नेशनल ओपोजिशन लीडर बन के आते हैं, तो मेरे को लगता है वो ज्यादा कंपटीशन देंगे नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जी। तो मेरे को लगता है कि अगर ये इंक्वायरी ईडी कर रही है तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा कि इट हैज टू बी इंक्वायर्ड। और क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी उस केस को कोर्ट्स में लेके जा चुके हैं जी, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इस केस के ऊपर एक्शन और इसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा किया जाए। और कांग्रेस पार्टी अपनी इमेज को और धक्का ही लगा रहे हैं अगर वो अपने नेता के लिए तोड़फोड़ और पुलिस के साथ मारधाड़ कर। आप इमेजिन करिए कि ठीक है आपके नेता के ऊपर केस हुआ है राइट, आप प्रोटेस्ट करिए, पर आप अगर वहां पे धारा 100 आप ऐसी सिचुएशन कर देते हैं कि वहां पे बिजनेस बंद हो जाते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली प्रॉक्सिमिटी ज्यादा जरूरी है प्रोफिशिएंसी से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है जो उन्होंने की। जो हमारी फैमिली के क्लोज हैं उनके अंदर टैलेंट स्किल हो ना हो, पर सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, डील्स, पोस्टिंग्स सब उन लोगों के पास जाती रही है। तो मेरे को लगता है कि टाइम बदलना चाहिए, राइट। और हम अनफॉर्चुनेटली आज हमारा देश ऐसा बन रहा है, और खास तौर पे हमारी ओपोजिशन हर चेंज पे ऐसे अपोज करती है कि जैसे इसके बाद देश बर्बाद ही हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर चेंजेस नहीं आई तो बर्बाद होने के ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल सर। मैं देख रहा था कुछ दिन पहले कि राहुल गांधी को जो कैंपेनिंग किए जा रहे हैं उसके कि एक सत्याग्रह शुरू किया गया उन्होंने, फिर जो फिल्मों से इंस्पायर होके पोस्टर्स लगाए गए, राहुल झुकेगा नहीं, ये पोस्टर्स लगाए गए। और वो बड़ा राजनीति में पता नहीं क्यों ये बड़ा बैलेंस नहीं दिख रहा, क्यों जो कैंपेन कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के वर्कर्स कर रहे हैं। नहीं देखो, आप पोस्टर लगाओ जी, आप उसको मूवी वाला भी बनाओ, बढ़िया है जी, पर आप पत्थर मत चलाओ, ठीक है ना, आप तोड़फोड़ मत करो, आप पुलिस वालों के कॉलर मत पकड़ो जी। पोस्टर मैं कहता हूँ और फनी बनाए, हम उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, वो क्रिएटिविटी दिखाता है उनकी जी, राइट। वो चीज़ हमें मंजूर है कि आपने पोस्टर लगाए, आपने मीम्स बनाए, आपने बोला गवर्नमेंट गलत है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चलेगा, आपका बिल्कुल हक है। पर तोड़फोड़
अनुशासन को तोड़ना, आप एक नेशनल पार्टी हो तो आपको उसी तरीके से एक्ट करना है। जी सर, अभी आपने बदलाव की बात की और बदलाव एक और भी आया जो अग्निपथ स्कीम आई, तो उसको लेके बहुत उसका विरोध किया जा रहा है, लोगों में बहुत आक्रोश है और उसमें हालांकि ये भी कर दिया कि एज ऑफ ज्वाइनिंग 23 साल तक कर दी उन्होंने, तो उसमें इस बदलाव को कैसे देख सकते हैं? देखो, मैंने ये बोला कि हम अनफॉर्चुनेटली देश में हर बदलाव को हमारी ओपोजिशन पार्टीज अपोज करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है हम ओपोजिशन में हैं तो हमारा वर्ड पहले ओपोजिशन आता है तो सिर्फ अपोज करना है जी, जबकि ओपोजिशन पार्टी का काम है कि गवर्नमेंट जो देश के लिए खराब चीज़ें उनको करना और नई चीज़ें होने देना जो देश की प्रोग्रेस में काम आएंगी। अब आपने बोला लोगों में बहुत आक्रोश है, मैं नहीं मानता जी, मैंने खुद काफ़ी लोगों से यूथ से बात की है, वो इसको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। जी, आप देखो 17 साल में, 18 साल में, 19 साल में, आप जिस भी स्टेज पे हो, आप एक देश सेवा के काम में लग गए, आपको बेस्ट ट्रेनिंग मिली, दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट मैं इंडियन आर्मी को मानता हूँ जी, वहाँ पे आपको बेस्ट ट्रेनिंग मिली, आपका फिटनेस, आपकी डाइट, आपके अंदर मॉरल वैल्यूज, सारी चीज़ें डाली गई, आपको सेल्फ डिफेंस के लिए भी रेडी कर दिया गया और आपने 4 साल एक डिसेंट सैलरी पे अपने देश की सेवा की और जब आप वहाँ से निकले आपके पास एक डिसेंट मनी। जी, फिर गवर्नमेंट ने आपको प्रेफरेंस दे दी कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, ठीक है, और वहाँ पे आपकी पढ़ाई भी चल रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपका एजुकेशन लेवल भी बढ़ रहा है, आप यूनिवर्सिटी की हाफ क्रेडिट तक की डिग्री भी ले रहे हो, आपकी +2 भी हो रही है जी। उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट की जॉब्स निकलनी है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उसमें आपको प्रेफरेंस मिल रही है, चाहे वो पुलिस है, चाहे असम राइफल्स है, चाहे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, इन सारी BSF है, इन सब में आपको प्रेफरेंस मिल रही है। उसके बाद जब आप डिसिप्लिन्ड हो गए, आप कंपेयर कर लेना इन जो 4 साल यहाँ पे लगाएंगे 17 साल के बाद और जो 17 साल के बाद 4 साल किसी एक कॉलेज में लगाएंगे, आप उन बच्चों की क्वालिटी, सोच, पर्सनैलिटी, उनके वैल्यू सिस्टम, उन सबको कंपेयर कर लेना जी। ओपोजिशन देखो, आप कहीं पे भी 4 लोगों को खड़ा करके इसके बाद तो जी आपकी लाइफ खत्म हो गई। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने विरोध किया, जी हम तो आर्मी में जाना चाहते थे, अब हम सिर्फ 4 साल के लिए जाएंगे। नहीं, 25% लोग फाइनल के लिए सिलेक्शन होंगे, जो रेजिमेंट सिस्टम है वो चलता रहेगा जी। उसके अलावा आपकी एज प्रोफाइलिंग आपकी फौज की बेटर हो जाएगी। देखो, सोल्जर्स तो यंग होने चाहिए जी, बिल्कुल। आपके पास कैपिटल एलोकेशन के लिए ज़्यादा पैसा रहेगा, इसका मतलब आज फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे हर जो नया बदलाव आ रहा है, और उसके बिना आप देखना देश सुपर पावर नहीं बन सकता जी। ये जो ओपोजिशन ने ट्रेंड शुरू कर दिया है कि हर चीज़ में आप रैली कर जाओ, आज सारी ओपोजिशन पार्टीज, क्योंकि उनके पास कोई मेजर एजेंडा नहीं है, वो किसी भी स्टेट में हो, अगर यहाँ पे पंजाब में आम आदमी पार्टी है, कितनी आम आदमी पार्टी काफी अच्छे इनिशिएटिव कई बार लेके आती है, बिल्कुल, पर ओपोजिशन हर बात पे अपोज करती है जी, राइट। जहां पे वो बल्कि गलत कर रहे होते हैं उस क्वेश्चन को नहीं उठाते जी। ओपोजिशन को सही इशू उठाने चाहिए ना। तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो है, आप मेरे को बताइए कि क्या आप 1 बैच 2 बैच 3 बैच 4 बैच रख के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्या हमारे सिस्टम? और ये ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी पहली बार कर रही है दुनिया में जी। इजराइल, सिंगापुर, फ्रांस, आप चाइना जी, ये सारी फोर्सेस इस सिस्टम को यूज करती हैं जी। इससे क्या होता है कि आपकी आर्मी यंग रहती है और आपके पास एक रिजर्व फोर्स बननी शुरू हो जाती है कि जब भी लड़ाई की जरूरत पड़े आप इन लोगों को ड्राफ्ट कर सकते हैं। अभी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत है, मैं पूरी तरह से मैंने भी नहीं पढ़ा, इसमें शायद ये भी हो कि अब जिसने 4 साल ट्रेनिंग की, 1.5 साल बाद शायद वो सिस्टम से हटना शुरू हो जाए, तो कौन बीच बीच में 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की आपको जाके ट्रेनिंग मिले जी, ताकि आप हमेशा रेडी रहें उन चीज़ों के लिए। बाकी अदरवाइज आपने इस तरह का 4 साल का डिसिप्लिन एनवायरनमेंट अपनी उस उम्र में, जब आपने अडल्ट बनना है 17 से लेके 23 तक, जब आपकी पर्सनैलिटी की असली जो बुनियाद रखी जाएगी इन मैच्योर लाइफ जी, तो मेरे को लगता है कि हमें एक बहुत ही अच्छा काडर मिलेगा, सिर्फ आर्मी के लिए नहीं, एक सिविल सोसाइटी के लिए भी जी। तो मेरे को इसका विरोध पब्लिक में नहीं है, इसका विरोध मीडिया में है। इसका विरोध ये है कि किसी भी अनजान चीज से एक डर जैसा हमारा माइंडसेट हो गया है। हम इनोवेशन से डरते हैं, हम हर चेंज से डरते हैं। कोई भी रिफॉर्म्स आते हैं, हमें लगता है कि इससे तो सब कुछ, जैसे कंप्यूटर्स आए थे जी, कितनी हड़तालें हुई कि कंप्यूटर आएंगे अब तो लोगों की नौकरियां खा जाएंगे, बैंक वालों ने कितनी देर काम बंद किए और उससे कितनी नौकरियां बढ़ी जी। ऐसे ही हर बदलाव से हम डरते हैं, और पर बदलाव के बिना हम खत्म हो जाएंगे, ये हमारे देश को समझ लेना चाहिए। इसी के साथ ही सर, PM मोदी
हिमाचल टूर पे हैं, जो हिमाचल में वो 2 दिन रहेंगे, और क्या क्या हो सकता है 2 दिन में? देखो बेसिकली मेनली इस ट्रिप का मेन एजेंडा, अपार्ट फ्रॉम एक उन्होंने एक रोड शो किया, मेन एजेंडा है जो चीफ सेक्रेटरीज हैं स्टेट्स के, उनके साथ एक उनकी मीटिंग है। जी। किसी भी पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उस स्टेट में चीफ सेक्रेटरी के थ्रू होनी है। दे आर द फाइनल अथॉरिटी, दे आर इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो और पॉलिसी सेंट्रल स्कीम्स हैं, चाहे वो हाउसिंग से रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे इंश्योरेंस से रिलेटेड है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे ईमानदारी से, उनके फंड्स जिस चीज़ के लिए आए हैं वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन स्टेट्स में आए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको फंड दिया अस्पताल बनाने के लिए और आप सैलरीज दे रहे हो या अपनी प्रमोशन कर रहे हो, ऐसा भी हमने स्टेट्स में देखा हुआ है। तो ये उनकी उस, और स्पेशल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि एजुकेशन ही बेस बनेगा हमारे देश की उज्जवल भविष्य का। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो फंड्स और जो चीज़ें एलोकेट हो रही हैं वो सही तरीके से लगें, टीचर्स की बेस्ट ट्रेनिंग हो, बच्चों को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ये मेजर एजेंडा है उनका। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स आपको पता है हिमाचल में इलेक्शन आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी अगर वहाँ पे जाएंगे तो वो इलेक्शन के ऊपर जहाँ पे भी हिंदुस्तान में जाते हैं, अब तो उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि अगर नरेंद्र मोदी जी यूएस भी जाते हैं तो वहाँ पे भी इलेक्शन पे वो इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो आज वो अपना कद इतना बढ़ा चुके हैं, तो वो एजेंडा तो हर पॉलिटिशियन का हमेशा रहता ही है कि अगर हिमाचल में इलेक्शंस हैं तो वो अपनी पार्टी के लिए कुछ पॉजिटिव करके आए वहाँ पे। जी बिल्कुल सर। एक इंडिया एशियान कॉन्क्लेव हुआ सर, उसमें न्यू सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ की बात हुई, तो उसको कैसे देखा जा सकता है? देखो इंडियन गवर्नमेंट ने एशियन एक स्ट्रॉन्ग इंडिया एशियन कॉन्क्लेव में बेसिकली एशियन कंट्रीज के साथ मिलके चलना, और देखो इस वक्त ये स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्क्लेव, क्योंकि एशियन कंट्रीज विदाउट नेमिंग, इनफैक्ट उस कॉन्क्लेव में चाइना का जिक्र हुआ है बिना नाम लिए उसका, कि भाई जो डोमिनेशन वो करने की कोशिश कर रहा है एशियन रीजन में, उसको कैसे काउंटर बैलेंस कैसे करना है। आज एशियन कंट्रीज, चाहे फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, और भी जो कंट्रीज कंबोडिया, लाओस वगैरह जो उस रीजन में पड़ती हैं, वो आज इंडिया की तरफ देख रही हैं कि वो एक काउंटर बैलेंस और चाइना का जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और इस समिट का भी यही पर्पस है कि भाई हमें इस रीजन को सेफ और सिक्योर रखना है, किसी एक कंट्री की जो क्या बोलते हैं हेजेमोनिक जो माइंडसेट है उसको कैसे कंट्रोल में रखना है। तो ये इस टाइम पे ही एक इम्पॉर्टेंट मीट थी और ये इंडिया के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में और बेटर करेगी। बिल्कुल सर। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं बिलावल भुट्टो, तो उन्होंने भी कहा है कि हम इंडिया के साथ और रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, रिगेन करना चाहते हैं। देखो उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ हमें कन्वर्सेशन शुरू करनी चाहिए, पर उनका जो उनके हाथ में कुछ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर जो मर्जी बोल दे, जब तक वहाँ के जनरल नहीं बोलते कि हमें इंडिया के साथ कन्वर्सेशन करनी है, इट इज़ नथिंग। और दूसरी बात है कि फिर आप उनकी स्टेटमेंट को अगर आप डिटेल से देखेंगे, उन्होंने वही वो पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है जी। कश्मीर, धारा 370, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब उनका फ्यूचर यही है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना ही होना है जी। धारा 370 इंडिया का राइट था और इंडिया ने वो हटाया है, राइट। और आप इन सब चीजों से हटके, इंडिया विल नॉट लूज एनीथिंग। आज अगर ट्रेड बंद हुआ है तो उनकी परसेंटेज ऑफ ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, इंडिया के लिए तो मिनिस्क्यूल है जी। तो इंडिया को उसको फर्क नहीं पड़ना है। और वो कब तक, देखो अब आप देखिए हर रोज यही न्यूज आती है कि पाकिस्तान में चाय पीनी कम कर दो, शाम को बिजली चलानी बंद कर दो, दुकानें जल्दी बंद कर दो, ऑफिस में एसी चलाने बंद कर दो। आज पाकिस्तान इस हालत में पहुंच गया है जी। ग्लोबली वो आइसोलेट हो गया है। वो इंडिया से जितना दूर जाएगा और इंडिया को काउंटर करेगा वो और आइसोलेट होगा और इंडिया उतना इन्फ्लुएंशियल होता जा रहा है। वो बात कर रहे हैं इस्लामोफोबिया की, इंडिया के अंदर कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। इंडिया के अंदर एक कल्चर बनाया जा रहा है कि ऑन द नेम ऑफ रिलीजन आप देश के अंदर तोड़फोड़ नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। आप प्रोटेस्ट करिए, अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई है आपका बिल्कुल हक बनता है कि आप उसको कोर्ट में या किसी भी लेके जाएं, पर आप पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर सकते। इस इंडिया में इंडिया का वो कल्चर ही नहीं है। हम सब रिलीजन्स को असिमिलेट करने वाली कंट्री है। ये हमारे देश का हमारे हिंदुस्तान का कल्चर रहा है। तो हमारे यहाँ पे कोई फोबिया नहीं है। हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशंस, मैं तो आज की डेट में मुस्लिम आर सेकंड मेजॉरिटी फॉर अस, दे आर नॉट अ माइनॉरिटी। तो उनको भी अपने आप को माइनॉरिटी और माइनॉरिटी विक्टिम माइंडसेट से निकल जाना चाहिए। और जो मेन स्ट्रीम इंडिया की जो प्रोग्रेसिवनेस है उसमें और ज्यादातर लोग जुड़े भी हुए हैं, बट कुछ खुद
उन्हीं के लीडर्स ही उनको हर बार भड़का के, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स ही वैसे चलती है। और इससे पहले काफ़ी साल तक हमारी पॉलिटिक्स में ये डिवाइड एंड रूल और बांट के रखने वाला काम चलता रहा है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे कि रिलीजन के बेसिस पे हो। तो अब इंडिया को इससे निकलना पड़ेगा और देश को सबसे पहले लाने का माइंडसेट लाना ही पड़ेगा। रिलीजन हैज टू बी इन योर हार्ट, रिलीजन शुड नॉट बी ऑन योर स्लीव्स। ये बात अब हर हिंदुस्तानी को समझ लेनी चाहिए। मैं कहता हूं दुनिया के अगर हर आदमी ये समझ ले तो दुनिया में 90% लड़ाइयां वैसे ही खत्म हो जाए। अब कमिंग टू पाकिस्तान, उनके पास वो एक वेसल स्टेट है, वो सिर्फ चाइना के इशारे, और आज चाइना को भी उसकी यूटिलिटी लगनी बंद हो गई है, क्योंकि चाइना भी समझ गया कि इंडिया इज गेटिंग सो स्ट्रांग कि इंडिया को अगर हम वेस्टर्न फ्रंट पे ऑक्यूपाई भी कर दें तो हमें इस तरफ कोई एडवांटेज होने वाला है नहीं। और विद यूएसए कमिंग इनटू द पिक्चर, जापान कमिंग इनटू द पिक्चर, जापान ने भी अब अपनी मिलिटराइजेशन, ऑफेंसिव मिलिटराइजेशन शुरू कर दी है। तो चाइना को भी अब अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के नेताओं, उसमें भुट्टो फैमिली का बड़ा हाथ रहा है, उनके जर्नल्स, इनकी करप्शन ने पाकिस्तान के लोगों को जो एक प्रोग्रेसिव कंट्री बन सकती थी उसको एक क्या बोलते हैं वो दकियानूसी, गरीब, जहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, उस डायरेक्शन में ले गए हुए हैं। जी, शुक्रिया सर मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए। इसी तरह के देश दुनिया के इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात करते रहेंगे, आप तक लेके आते रहेंगे वही मुद्दे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद ऑन पंजाब टुडे।